Hey everyone, welcome to my channel. So over here we are going to discuss about all the past papers and whatever the queries you have. So let's start. We are discussing about the science paper 2, which is chemistry. We're only going to discuss about section A, and then later part we can discuss about section B. So let's begin. First is section A of 40 marks. So first questions यहाँ पे बोलता है. First question is unsaturated hydrocarbons undergo. So first thing you should know that अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है टू टाइप. वन इज एल्कीन एंड एल्काइन. ठीक है. जो एल्कीन एंड एल्काइन होता है वो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाता है एंड बेस्ड ऑन दैट दीज bonds are highly reactive, more reactive I would say, and it can easily be added across the bond. And इसकी वजह से क्या होता है, the bond will break and to form to an alkane compound or group. सो इसके वजह से बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है एंड दिस कैन हैपन ओनली एंड ओनली फॉर एडिशन रिएक्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज in the second period neon has a maximum ionization potential. So first thing you should know ionization potential होता क्या है. तो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी लगती है हमें, ओके, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल. So over here you can write minimum energy required to remove an electron. Now as you can see they are asking about second period neon. नियॉन में अगर हम देखेंगे हमारा ग्रुप जो लाइक करता है वो नॉन मेटल ग्रुप में लाइक करता है विच इज अक्रॉस ए पीरियड और डाउन ए ग्रुप वी कैन से अक्रॉस ए पीरियड. सो अक्रॉस ए पीरियड्स ऑब्वियसली आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस. रीजन बीइंग बिकॉज उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड द electrons are most strongly held by the nucleus, and that's the reason IP increases. Whereas if I talk about down a group it decreases. क्यों? Because उसकी size increase होती है. Atom की size जैसे जैसे increase होती है electrons are very far away from the nucleus, and that's the reason what happens, it loosely bonded. So that's the reason IP decreases. So if I talk about neon case, neon का you already know that the electronic configuration is 2,8, which is highly filled, that means highly stable. Okay, so over here अगर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन की, it has unstable electronic configuration. नहीं, ये तो unstable है ही नहीं because it has 8 electrons in the outermost shell. Second, it easily accepts electron. नहीं, they doesn't they actually do not accept or donate electrons. It easily loses electrons. नहीं, जैसे मैंने बोला नहीं करता. And the outermost shell is completely filled. Yes, the outermost shell is completely filled, and that is why it is more hard to remove the electron. Okay, so the final answer is D. Third one, कॉपर जिंक टिन आर द मेटल्स एलॉयड टू फॉर्म. अगर हम एक एक एलॉयज की अगर हम बात करें, ड्यूरेल्यूमिन की अगर बात करें तो दैट कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम. ब्रास की हम बात करें कॉपर एंड जिंक. ब्रॉन्ज की बात करें कॉपर, जिंक एंड टिन. सोल्डर की बात करें तो लेड एंड टिन. सो फाइनल आंसर इज ब्रॉन्ज. So next one is the metal hydroxide, which reacts with both acids and alkalis to form salt and water. So देखो metal hydroxide जो होता है, metal hydroxide, when I talk about metal hydroxide, so we talk about metal along with hydroxide, which is OH group. So metal, you already know metals are given over here, calcium, magnesium, aluminum and ferric, all are metal along with the hydroxide. But यहाँ पे पूछा है which reacts with both acid and alkalis to form salt and water. So ये जो रिएक्ट करेगा दोनों के साथ, एसिड के साथ भी एंड एल्कलीज के साथ भी, विच इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, द रीजन बीइंग क्योंकि ये एम्फोथेरिक नेचर होता है. ओके, सो इट इज एन एम्फोथेरिक सब्सटेंस. इट इज एन एम्फोथेरिक सब्सटेंस. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ भी एंड बेसिस के साथ भी, विच इज एल्कलीज, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये दोनों जो रहता है ये बेसिक रहता है, इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करेगा. एंड टॉकिंग अबाउट फेरिक, फेरिक हाइड्रोक्साइड एक ये वीकली एम्फोथेरिक नेचर इन नेचर होता है, एंड दैट्स द रीजन. एल्यूमिनियम और फेरिक की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम टेक्स अ रोल, विच इज एल्यूमिनियम विल बी एन एम्फोथेरिक सब्सटेंस.
Next, we talk about reaction of an alcohol with carboxylic acid in the presence of concentrated H2SO4. Now, whenever we use as a concentrated H2SO4, हमेशा याद रखना एक ये है dehydrating agent, ओके? ये यहाँ पे एक कैटलिस्ट जैसा एक्ट करेगा, ठीक है? और दूसरा क्या एक्ट करेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट. सो व्हेन आई से डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कहाँ से हमें पता चलता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट? कि जैसे कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट अगर आ गया, दैट मीन्स देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर. तो अगर हम अल्कोहल की हम बात करें, ठीक है? सो अल्कोहल, whenever there is an alcohol reacting with an acid will obviously give me the esters plus water. ठीक है? So यहाँ से alcohol, so this whole process will be called as esterification. And who helps out? Concentrated H2SO4. Conversion of ethanol to ethene by the action of concentrated sulfuric acid involves. अभी इसे इसके अंदर अगेन आई एम टेलिंग यू सल्फ्यूरिक एसिड है, concentrated sulfuric acid है, वो डिहाइड्रेशन जैसे ही एक्ट करेगा. सो अगर आप इसकी अगर हम रिएक्शन देखें, सो दिस वुड बी C2H5OH, ठीक है, in the presence of what? Concentrated H2SO4, which will give me ethene. C2H4 will the removal of water. So answer is dehydration. डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. डिहाइड्रोहेलोजनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ HX. HX का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड. हाइड्रोलाइसिस is a reaction with water. So obviously यहाँ पे तो वो बात नहीं हो रही है, ठीक है? So dehydration is the correct answer. Next question, the oxidizing agent in the equation sulfur H2SO4. Now here is a trick. Now whenever there is a reaction, कभी भी कोई भी reaction होता है उसमें एक oxidation होता है, एक reduction होता है. So we need to first find out. Now whenever you are getting the reaction, अगर हमें find out करना है कि वो oxidizing agent है या reducing agent है, so best way to remember is कभी भी कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हम उसे O से रिफर करेंगे, O, और वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन. अगर लेट्स अज्यूम O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है? जो भी एक प्रोसेस, जो भी एक स्पीसीज ऑक्सीडेशन रिएक्शन फेस कर रहा है, सो उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. ऐसे याद रखो, ORA, ओरा. नेक्स्ट, रिडक्शन अगर होगा तो हम उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे रिएक्ट करेंगे. तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीडेशन कौन सा हो रहा है, रिडक्शन कौन सा हो रहा है. अगर हम इसकी बात करें, सल्फर, सल्फर तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. कैसे? सल्फर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट और यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है. हमने बात किया कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. सो व्हेन आई से ऑक्सीडाइज्ड, सो आई राइट हियर फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, ये ऑक्सीडाइज कैसे हुआ? सल्फर किस में था? एक न्यूट्रल एटम है. सो सल्फर पहले वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 0 था. 0 से ये सल्फर 4+ हो रहा है. नाउ हाउ दिस सल्फर 4+ हो रहा है इस चीज का. सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमको ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालनी हो तो कैसे निकालनी होती है. सो फर्स्ट थिंग हमें ये देखना है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड में कोई चार्ज है कि नहीं. क्या यहाँ पे कोई चार्ज है? नहीं. सो इफ आई वांट टू फाइंड द सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इन सल्फर डाइऑक्साइड, तो मैं इसको एक्स ले लूंगी, सल्फर को, प्लस 2 ऑक्सीजन है और कितना ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? -2 इक्वल्स टू 0. वाई 0? क्योंकि हमारे पास कोई चार्ज नहीं है ऊपर, ठीक है? सो ये हो जाएगा -4 और ये यहाँ पे जाएगा तो +4 एंड हेंस ये +4 हो रहा है. तो कोई भी अगर एलिमेंट, ये एटम, न्यूट्रल एटम 0 से 4+ जा रहा है, दैट मीन्स इट मीन्स व्हाट? इट्स ऑक्सीडाइज्ड, राइट? तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. ऑक्सीडाइज्ड का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑलराइट, सो अगर ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो ये रिड्यूस्ड हो जाएगा, राइट? रिड्यूस, रिड्यूस अगर हो रहा है तो मतलब क्या? कोई भी चीज अगर रिड्यूस होती है तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑलराइट, एंड दैट्स द रीजन H2SO4 जो है हमारा, H2SO4 इज नथिंग बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद रिड्यूस्ड हो रहा है, राइट? उसको ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस्ड हो रहा है. नाउ नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन मैक्सिमम इन. तो अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? जो एनर्जी रिलीज करता है कब? जब एटम कोई गेन करता है इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन. तो अगर एनायन, अगर हम इसकी बात करें, ये तो एनायन फॉर्म नहीं करता है, तो प्लस फॉर्म करता है, दिस इज केटायन. ये तो ऑलरेडी नोबल गैस है, ये भी सेम चीज जो है मैग्नीशियम करता है. तो बचा क्या हमारे पास? ब्रोमीन.
So the answer is bromine. The compound that is not a constituent of the electrolytic mixture used in the Hall-Heroult process is, अभी Hall-Heroult process का मतलब क्या होता है, कौन सा एक्सट्रैक्शन होगा ये, एल्यूमिनियम का, ठीक है। सो ये हमारा जो एक्सट्रैक्शन जो होगा वो हमारा किसका होगा, एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स ओर। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसके अंदर क्या चीज नहीं प्रेजेंट है, तो हम इसकी बात करें Al2O3 क्या होता है, Al2O3 इज नथिंग बट द एल्यूमिना, ठीक है, ये तो रहता ही है उसके अंदर, ठीक है। ये डिसॉल्व होता है किस फॉर्म में, मोल्टन क्रायोलाइट, मोल्टन क्रायोलाइट किसको बोलते हैं, Na3Al6 को, सो ये होता है मोल्टन क्रायोलाइट, ठीक है। ये मोल्टन क्रायोलाइट फिर अभी क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड भी आल्सो एडेड इन द लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड इंक्रीज द कंडक्टिविटी, ये हमारा जो कैल्शियम फ्लोराइड है वो भी एक यूज होता है। सो बचा क्या हमारे पास, क्या चीज नहीं है यहाँ पे, बी, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्म और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, on passing ammonia gas over heated copper oxide for some time, a reddish brown residue is left behind. What property of ammonia is demonstrated here? सो देखिए यहाँ पे अमोनिया गैस जो है वो पास हो रहा है कॉपर ऑक्साइड के जरिए एंड अमोनिया एक्ट्स, और जो ये अमोनिया है, अभी अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इट रिड्यूसेस क्या, कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर मेटल, ठीक है, और कॉपर मेटल कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन रेसिड्यू। सो अगर हम बात करें यहाँ पे, सो कॉपर ऑक्साइड जो कि वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का होता है, रिड्यूस टू क्या होता है, Cu, द कलर इज रेडिश ब्राउन, ये लिख लेना ताकि ये बहुत काम का आएगा इन एग्जामिनेशन, दे माइट आस्क यू रिवर्स। और जो अमोनिया होता है, अपना जो अमोनिया है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, सो आई राइट हियर ये रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइज टू क्या, नाइट्रोजन एंड वाटर, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि अमोनिया क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अमोनिया क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, हमने पहले ही देखा था कि जो भी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर फोर्स कर रहा है, तो अगर हम उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ये हो गया अपना जो अमोनिया है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, क्यों शो करेगा, बिकॉज इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू कॉपर ऑक्साइड कन्वर्टिंग इट टू मेटल, मेटेलिक कॉपर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज rotten egg smell is due to liberation of, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें कि रोटन एग का स्मेल क्या होता है, सो रोटन एग का स्मेल होता है जो स्मेल है वो कहाँ से आता है, H2S से आता है। H2S का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और बाकी जो गैस जो दिए हुए उसके डिस्टिंक्टिंग ऑर्डर नहीं होते हैं। सो H2S ही एक हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसा होता है जो रोटन एग को रिजेंबल करता है। नाउ अमोनिया गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर सिंस अमोनिया इज, सो पहली बात यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अमोनिया जो है वो उसका जो डेंसिटी होता है बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू दी एयर, ठीक है, और वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। और अमोनिया की अगर एक बात बताए तो अमोनिया एक हाईली सल्यूबल इन वाटर होता है, सो इट्स हाईली सल्यूबल, राइट इट डाउन, हाईली सल्यूबल, ठीक है। तो ये एक हाईली सल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शंस की, वेरी स्लाइटली सल्यूबल नहीं, मैंने तो बोला यहाँ पे तो हाईली सल्यूबल इन वाटर है, हेवियर देन एयर नहीं, ये तो लाइटर देन एयर होता है, द आंसर इज करेक्ट, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और इनसोल्यूबल नहीं, तो मैंने जैसे कि लिखा है यहाँ पे हाईली सोल्यूबल इन वाटर, तो ये भी आंसर रॉन्ग, सो द फाइनल आंसर इज लाइटर देन एयर। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड ऑक्यूपाई 22.5 लीटर्स एट एचटीपी, तो अगर हम एक एक चीज की अगर हम बात करें जैसे कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सो हमें पता होता है ऑक्सीजन गैस हम बोलेंगे मतलब O2 की बात हो रही है, एक ऑक्सीजन का हमें वैल्यू कितना पता है, 16 होता है, राइट, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2, वाई,
क्योंकि ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में होता है, तो इट गिव्स मी अराउंड 32, विच इज यस 32 ग्राम पर मोल के हिसाब से अगर हम बात करें उतना ऑक्यूपाई स्पेस करेगा, विच इज 22.5 लीटर्स एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 1 मोल विच ऑक्यूपाइज कितना 22.5 लीटर्स एट एसटीपी, ठीक है। तो ये तो राइट है। सेकेंड हम देखते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो अगर हम हाइड्रोजन की गैस की बात करें 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो ये तो डबल हो जाएगा, विच इज 44.8 लीटर। सो नहीं, ये तो गलत हो गया। थर्ड वाले की हम बात करें 6.022 इंटू 10⁻23 है इक्वल्स टू 1 मोल ही होता है, राइट। एंड 1 मोल ऑफ अमोनिया इज नथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज 22.4 liters at STP. So 1 and third. So 1 and third is the answer. Now, next question is in the molecule of water oxygen atom has. So अभी यहाँ पे मैंने आपको डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बता दिया है। So ऑक्सीजन के पास कितनी वैलेंसी होती है आउटर मोस्ट शेल, हम प्ले ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ओके। वाई 6? अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट 8, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये कैसा हो जाएगा 2,6, तो 6 बना चुके हैं हम, और यहाँ पे हाइड्रोजन है दिया, तो कितने लोन पेयर्स हमें बचे, 2 लोन पेयर्स। सो 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। A mineral from which the metal can be extracted economically and conveniently known as. So यहाँ पे हम बात करें तो मिनरल जो होता है, जो एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो हम करेंगे और, ठीक है। मैट्रिक्स की हम बात करें तो मैट्रिक्स ये एक रिफर होता है सराउंडिंग रॉक के ऊपर डिफाइंड होता है। फ्लक्स हम मेटलर्जी के लिए यूज करते हैं, एंड अलॉय नथिंग बट ए मिक्सचर ऑफ मेटल। सो फाइनल आंसर इज ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे पहली बात ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, हमें थोड़े बहुत चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो आई गिव यू अ ट्रिक। तो ट्रिक क्या है बेसिकली, अगर हम कभी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि एनोड पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, एंड सेम गोज विद कैथोड। सो वहां पे हमें कभी भी ऐसा कोई स्टाइल के क्वेश्चन है, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पे ये रिफर करेंगे पैनिक वर्ड। अब ये पैनिक का मतलब क्या होता है, पैनिक नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स पैनिक नहीं होना है, ये क्वेश्चंस देख के। पैनिक का मतलब होता है पॉजिटिव इज एनोड, ठीक है, पॉजिटिव इज एनोड, ठीक है। तो हम ये इस पे हम पॉजिटिव डाल देते हैं, एंड नेगेटिव इज कैथोड, तो हम इसमें नेगेटिव डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का हम बात करें, हम क्या इलेक्ट्रोलाइट, तुम्हें पता ही होता है कि इलेक्ट्रोलाइट में हमें वही चीज यूज करनी पड़ती है जो हमें कैथोड में यूज करनी रहती है, ओके। सो देयर इज वन मोर थिंग विच आई हैव टू टेल यू कि एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे एक और एक चीज है हम यूज कर सकते हैं एनोड के, इसमें आप क्या लिखोगे एनऑक्स, ठीक है। एनॉक्स का मतलब क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस एट एनोड। और यहाँ पे ऐसा याद रखो रेड कैट, रेड कैट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन विल टेक प्लेस एट कैथोड। सो ये एक ट्रिक है, ये यूज कर लो, कभी भी ये बहुत काम आती है, ठीक है। अगर हम ऑक्सीडेशन की एक और एक चीज की बात करेंगे, सो यू शुड नो दैट ऑक्सीडेशन विल हैव लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो पता ही है। ऑक्सीडेशन क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे ये भी चीज अगर याद नहीं रहती है एग्जाम में, तो हम उसे कैसे याद रखेंगे, ऑयल रिग से। Now, what do you mean by oil rig? Oil rig का मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिग का मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये एक ट्रिक रहती है पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन अगर दी जाती है, तो ये चीज आप यूज करो। आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल टू यू, ओके। नाउ लेट्स गेट टू द क्वेश्चन। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग द आयरन कप इज प्लेस्ड एट कैथोड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आयरन कप हम कैथोड में प्लेस क्यों करते हैं, द रीजन बिग। सो यहाँ पे लिखा है कैटाइंस। अभी कैटाइंस यहाँ पे अब अच्छा, इसमें पहले हमें पता होना चाहिए कि आयरन कप क्या है, किससे बना है। तो अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आयरन कप कप विथ व्हाट, निकल मेटल, प्लेट किया है निकल मेटल से, हमें उसको ये करना है। सो कैटाइंस ऑब्वियसली रिलीज होगा, राइट। सो अभी यहाँ पे कहाँ से रिलीज होगा, अगर हम यहाँ पे एनोड की बात करें तो एनोड अभी हमारा कौन सा होगा, निकल का बना होगा, राइट। तो अभी ये जो एनोड है,
हमें पता है कि यहाँ से क्या होना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होनी है, देयर विल बी अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से निकल निकलेगा। अगर कोई भी अगर चीज लॉस्ट हो रही है, अगर ये लॉस्ट हो रही है तो फिर ये क्या हो जाता है, व्हेन निकल एटम गेट्स लॉस्ट, तो ये किस में लॉस्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, सो द आंसर इज Na2 प्लस। सो कैटाइन्स मूव टुवर्ड्स द कैथोड, सही बात है, कैथोड क्या करेगा, जो हमारे पास जो एनायंस है, जो विच इज केटाइंस, वो कहाँ मूव करेगा, कैथोड के प्लस। कैथोड के प्लस क्यों मूव करेगा, बिकॉज ये 2 प्लस है, पॉजिटिव विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड गेट डिपॉजिटेड। ठीक है, सो आपको पता चल गया रहेगा, ये एक्सप्लेनेशन में जा रहा है, इससे ज्यादा हम फट से हम नहीं कर पा रहे। अदरवाइज अगर आपको ये सब पता है ऑलरेडी, सो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि एनोड किससे बना रहेगा, निकल प्लेट से बना रहेगा। निकल क्या करेगा, एनोड लूज, एनोड क्या करेगा, निकल लूज करेगा, क्या लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कहाँ जाएगा, इट गोज टुवर्ड द कैथोड, क्योंकि वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। नेम द आयन दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। समझने की बात, जैसे कि मैंने कहा, जो इलेक्ट्रोलाइट हम, जो कैथोड में हम चाहिए, हमको वही इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट निकल 2 प्लस, और निकल भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आयन की बात की है, आयन की बात की है तो हमें चार्ज भी लिखना पड़ेगा। स्टेट वन कंडीशन दैट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट द डिपॉजिट इज स्मूथ, फर्म एंड इवन। सो एक कंडीशन अगर हम देख सकते हैं, तो हम कोई भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सो हम इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं बेसिकली। सो लो करंट फॉर ए लॉन्गर टाइम विल बी एनी विच वे नेसेसरी। राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड। अभी एट द कैथोड क्या हो रहा है, अभी हमें पता है देयर विल बी अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी गेन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की गेन हो रही है, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो Na2 प्लस गेन हो रही है, तो हम लाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या फॉर्म हो रहा है, निकल प्लेट में वो इस्टेब्लिश हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, राइट। सो दिस इज योर आंसर। गेन गेन हो रहा है, तो हमारा जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमें लेफ्ट साइड दिखानी। नाउ व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व एट द एनोड, एनोड में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, जैसे जैसे उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसकी साइज कम होती जाएगी। सो निकल प्लेट डिसॉल्व एज आयंस इज solution, it get reduced या smaller in size, anything if you want to write you may write. Now match the column, 5 मार्क्स का है। सो यहाँ पे हम देखते हैं वाटर, वाटर इनमें से क्या होगा, यस इट्स अ कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। और कुछ है यहाँ पे ऑप्शन नहीं, ओके कोवैलेंट बॉन्ड, सो आई राइट ए हियर। एल्कली मेटल, यहाँ पे कोई मेटल, यस लिथियम इज देयर, सो आई राइट बी। हेलोजन इज आयोडीन, यस, और कोई है नहीं, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड की हम बात करें तो कैल्शियम 2 प्लस ऑक्साइड, ओके, सो दिस वुड बी आयोनिक। वीक एसिड की हम बात करें, सो वीक एसिड इज नथिंग बट दी एसिटिक एसिड, ऑलराइट। Next question, complete the following sentences by choosing the correct answer from the bracket, which is going to be again 5 marks. The salt that can be prepared by direct combination. So यहाँ पे दो चीज दी है, एक तो फेरिक क्लोराइड दिया है और ये फेरिस क्लोराइड दिया है। सो अगर हम इसकी अगर हम बात करें डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे आई राइट द रिएक्शन। सो यहाँ पे है आयरन, ठीक है, क्लोरीन गैस which gives me FeCl3. Now, if I want to balance, this would be 3, this would be 2, and this would be 2 again. So, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में हमें डायरेक्टली FeCl3 मिलता है, फेरिस क्लोराइड नहीं मिलता है, ठीक है। ये दूसरे मेथड के लिए टिपिकली यूज होता है, बट नॉट फॉर द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। दिख रहा है हमें कि हमने आयरन लिया है, क्लोरीन लिया, एंड आई एम गेटिंग डायरेक्टली एज ए फेरिक क्लोराइड। Next question, the metallic oxide which can be reduced by using common reducing agents are. So अभी यहाँ पे हम बात करें कि common reducing agents कौन कौन से होते हैं। So for ferric oxide, it can be reduced to iron, ठीक है। हम ferric oxide को directly आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे, रिड्यूसिंग एजेंट से। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट एक तो हम कार्बन है तुम्हारे सिलेबस में, कार्बन, हाइड्रोजन है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का एक ले लेती हूँ जिसमें ब्लास्ट फर्नेस, ये भी बताया रहेगा कि हम ये कहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, इन ब्लास्ट फर्नेस। स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या रहेगा, कोक रहेगा। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द रिएक्शन, रिएक्शन वुड बी Fe2O3,
ठीक है, इट इज अ मेटेलिक ऑक्साइड। हम रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, लेट्स अज्यूम मैं कार्बन मोनोऑक्साइड लेती हूँ, सो कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दैट विल गिव मी मेटेलिक कैरेक्टर व्हिच इज मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, सो हमें क्या मिल रहा है, मेटेलिक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू अ मेटल, सो व्हिच इज आंसर इज नथिंग बट द Fe2O3। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्यों नहीं होगा, बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाईली स्टेबल होता है और वो रिड्यूस नहीं होता है विद द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज करते हैं एज कंपेयर टू दिस। See, metal nitrate which on thermal decomposition forms a black residue. So पहले बात तो हमें पता होना चाहिए कि जो मेटल नाइट्रेट है यहाँ पे, ठीक है, मेटल तो दोनों ही है, जिंक और कॉपर, बराबर ना। अभी यहाँ पे हमें बोलना है कि विच ऑन द थर्मल डिकम्पोजिशन फॉर्म्स ब्लैक रेसिड्यू, तो हम ब्लैक रेसिड्यू की हम बात करेंगे। हमें पता है कि जो ब्लैक रेसिड्यू होता है कॉपर नाइट्रेट के लिए, अभी यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट इज द आंसर। तो व्हाई कॉपर नाइट्रेट, द रीजन बीइंग कॉपर नाइट्रेट जो होता है, अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन कॉपर नाइट्रेट का करते हैं, सो हमें मिलेगा CuO विच इज अ ब्लैक इन कलर। ठीक है, एंड रिमेनिंग byproducts which is NO2 plus oxygen. So yes, copper nitrate is the answer. But what about the zinc nitrate? Zinc nitrate हमें क्या देगा, zinc nitrate हमें जिंक ऑक्साइड देगा। जैसे हमें ये कॉपर नाइट्रेट से कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, तो वो हमें जिंक ऑक्साइड देगा अगर हम जिंक नाइट्रेट यूज करेंगे। और जिंक ऑक्साइड कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो हमें यहाँ पे तो पूछा है ब्लैक रेसिड्यू, तो आंसर इज कॉपर नाइट्रेट। During the electrolysis of copper sulfate solution, if dash is used as electrodes, the color of the electrolyte does not fade. So अब हम इसकी बात करें कॉपर, कॉपर इज द बेस्ट वे। ओके, कॉपर इलेक्ट्रोड हम ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज कॉपर डिपॉजिट करता है कैथोड पे, ठीक है, और डिसॉल्व कब किस में करेगा, एनोड पे। ठीक है, कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन एंड द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अनचेंज्ड। ठीक है, तो कॉपर इज द करेक्ट आंसर। व्हाई नॉट द प्लैटिनम, बिकॉज प्लैटिनम क्या करेगा, कॉपर इज रिमूव्ड। ओके, कॉपर इज रिमूव फ्रॉम द सोल्यूशन मेकिंग द कलर फेड, so the final answer is copper. The process of heating the concentrated ore in a limited supply or absence of air, whenever there is limiting supply or absence of air, there is nothing but calcination. ठीक है, now the next question, state the terms of for the following, the group obtained by removing one hydrogen atom from the parent alkane, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप। Two metal plates or wires through which the current enters and leaves the electrolytic cell is electrodes. Two metal plates की बात करें, metal plates और wire nothing but the electrodes ही होता है। The amount of substance which contains the same number of unit as the number of atom in carbon 12 is nothing but mole. The tendency, सब definition से one word के हैं, 1 mark directly you can get. The tendency of an atom to pull a shared pair of electrons towards itself in a compound is nothing but the electronegativity. The formula which represents the simplest ratio between the four atoms of the atoms of elements present in the compound is empirical formula. ठीक है, तो empirical formula होता है which is the simplest ratio. ठीक है, तो हम उसको बोले molecular formula से empirical formula में you can convert. All right. Next question is, give the IUPAC name of the organic compounds represented by the structural formulae given below. So first thing, जब भी IUPAC names हमें डालना हो या बनाना हो, so you must know about the carbon. कार्बन की वैलेंसी तुम्हें पता होनी चाहिए कि कार्बन में कितनी वैलेंसी होती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या बनेगा, 2,4। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं विच कम्स टू लाइक दिस। ठीक है, सो हमेशा याद रखना कार्बन का 4 बॉन्ड्स ही बनते हैं, 5-6 बॉन्ड्स मत बनाते बेटा। सो द मोस्ट बेसिक थिंग इज कि कार्बन का सिर्फ 4 बॉन्ड्स बनेंगे, अटैच टू तुम कौन सा भी अल्काइल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हो, बट मेक श्योर दैट कार्बन के 4 बॉन्ड्स ही होनी चाहिए while naming also and while writing the structure as well, organic compound as well. Okay, so talking about the first question, यहाँ पे हम बात करेंगे first thing, whenever you see the whole structure, you will first count the carbon atom. ठीक है, तो यहाँ से हम count, कहाँ से हम count करेंगे, that's the question. So हम as a rule, you know, first we will see how many, 1 2 3 4 5, 5 है तो हम पेंटेन लिखेंगे। ठीक है, इट्स अ पेरेंट एल्केन, पेंटेन। हमारे पास एन क्यों होगा, एल्केन ग्रुप क्यों होगा, बिकॉज देयर इज नो अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, तो एल्केन ग्रुप में ही आ गया ये।
सेकेंड हम बात करेंगे हम नंबरिंग कहाँ से चालू करें। अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट एक क्लोरीन यहाँ का है, एक यहाँ पे है। सो जो क्लोजेस्ट कार्बन में होगा हम वहां से कैलकुलेट करेंगे। सो अगर क्लोजेस्ट है तो हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब एक क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन चेन पर, तो हम क्या करेंगे 2,3, ठीक है 2,3 क्लोरोपेंटेन लिखेंगे, डाई लिखेंगे। वाई डाई? बिकॉज हमारे पास 2 क्लोरीन है, सो डाई क्लोरोपेंटेन, ठीक है। सो गड़बड़ मत करना, डाई लिखना बहुत जरूरी है। मेनी ऑफ द चिल्ड्रन लाइक दे डू लाइक दिस कि यहाँ पे डायरेक्टली 2 3 क्लोरो लिख देते हैं, डाई लिखना भूल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज पहले हम अगेन वी विल काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन एटम्स है, लेट्स काउंट, दिस इज 1 2 3, ओके। सो प्रोपेन, प्रोपेन नहीं होगा, अभी यहाँ पे होगा हमारा प्रोपेनोइक एसिड। व्हाई? बिकॉज ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। डायरेक्टली 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एज आई टोल्ड यू, कभी भी तुम्हें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखे तो पहले देखोगे कि तुम्हारा पेरेंट एल्केन चेन कौन सा है, ठीक है। तो ओवर हियर दे हैव गिवन अस पेंटेन, मतलब हमारे पास 5 कार्बन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। सेकेंड इज कि हमारे पास कार्बन की बॉन्ड्स कितनी होनी चाहिए। हमें पता है कि कार्बन सेटिस्फाई हाउ मेनी बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स। सो यहाँ पे अगर लेट्स अज्यूम कि अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 5, सो थर्ड पे हमारा कौन सा ग्रुप अटैच होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप विच इज CH3, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे बात करेंगे कि कहाँ पे फिर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे तो कार्बन ने बॉन्ड बना था, बचा कितना, कितना 3 बचे। सो 3 के लिए आई एम शोइंग विद डिफरेंट कलर ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। यहाँ पे बचा, यहाँ पे रह गया, यहाँ पे ओवर हियर, ओके। सो दिस वुड बी CH3 H H H, जितने भी बॉन्ड्स बचे उसमें हाइड्रोजन फिल कर देना। सो दिस इज योर 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात की है हमारा किसमें, प्रोपाइन में। सो अगर हम प्रोपाइन की बात करेंगे, प्रोप मतलब 3 कार्बन आइटम, आइन की मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सो ये तो डायरेक्ट है, तो कहां से भी लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, सामने से या फिर लेफ्ट साइड या राइट से, कहां पे भी, ओके। नाउ इफ यू वुड सी हियर कि हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे अभी हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे लगाना है, एज आई टोल्ड यू, कार्बन कार्बन में सेटिस्फाई कितना होगा, 4 बॉन्ड। सो 1 2 3 यहाँ पे एक, इसके इसमें फर्स्ट वाले में आई विल नेम दिस, एक फर्स्ट वाले में 3 तो हो गया, तो बचा कितना 1, इसमें कितना हुआ 3 4, ये तो सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे H मत लिखना, नो H नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ लास्ट वाले में ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो एक और एक 1 2 3, 3 बॉन्ड बच गया, राइट। सो ओवर हियर H H H, so this is propine. Talking about the methanol, methanol, null means what, aldehyde group, राइट। सो ये सब एल्डिहाइड ग्रुप, ये सब तुम्हें याद होने चाहिए कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है। सो मिथेनॉल बोला है, सो मिथ मतलब 1 कार्बन, सो आई राइट 1 कार्बन। सो हमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप पता रहती है कि ये ऐसा रहता है, राइट। सो अगर हम बात करें कार्बन का, कार्बन सेटिस्फाई है नहीं है, 1 2 3 ऑलरेडी है, तो एक हम यहाँ पे H लगा देंगे। सो दिस इज योर मिथेनॉल। So this is all about section A, guys. So if you feel like to have section B as well, do comment in the section. इस section को भी बना दूंगी आपके लिए. So please like, comment, share and subscribe. Thank you.